Hello students of plus 1 and plus 2, I am Rajni, your core science teacher. Today we are going to discuss chapter Cold War era, that is of your second book, Contemporary World Politics. We are going to first discuss the Second World War. So as you know students, the Second World War was fought from 1939 to 1945 and it was fought among these groups, that was the Allies and the Axis. Allies represented by USA, USSR, Britain and France, and Axis power Germany, Japan and Italy. Okay, now the war was fought in all over Europe, even in Asian countries like Myanmar and northeastern states of India. Now, how did the war end? The war ended when USA dropped bomb on Hiroshima and Nagasaki. They are the two cities of Japan. We all know that. Okay, and how devastating, how destructive it was. So many people lost their life, and even now you will see that here no vegetation occurs. Okay, so this action of USA was supported also, and plus it was criticized also. Now what do the critics have to say? Critics say that it was not necessary for USA to drop bomb on these two cities because Japan was about to surrender. It was major pardon, Japan is the country. So Japan was about to surrender, so no, there was no need. Okay, but what USA has to say? USA says that it wanted to end the war. Okay, so that the alien country don't have to face any more destruction. That is the loss of their life and property. That is why it had dropped the war to end the war. But as the critic says that it was not necessary. What was the reason? Because the reason was that USA wanted to stop USSR from where? From expanding, spreading its influence. So that is the reason it dropped the bomb on these two countries, two cities, to show that who is powerful. Okay, that was the reason. Now students, we will discuss about the policy of deterrence. What is the meaning of the deterrence? Deterrence means both the countries. Here we are talking about two powers, the USA and the USSR. They both arm themselves with nuclear weapons, with missiles. Why? Both the countries have the power. They both are powerful. If this country attacks USA will be left with enough weapons. It will have enough power to retaliate, means to again give him the answer. Okay? So this is what is called deterrence. Okay? They are acting rationally and they are acting responsibly because both of them know that if one attacks the other also has the power to retaliate. Okay? So what they are observing? They are observing the deterrence. What is the reason for that? Because nuclear weapon and missiles, these are very powerful weapons. Nuclear weapon and missile very powerful. They can cause so much death and destruction that both the countries, that is both the blocks, USA and USSR, they will not be able to afford. Okay? And if at all the war takes place between these two countries, it will be so destructive that there will be nobody left to decide or to say who has lost or who has won the war. Okay, so that is the reason they are acting responsibly, rationally, and they are observing the policy of deterrence. That is what I was saying. Now,
Cuba. Okay, we will do the topic Cuban Missile Crisis. So, what is the Cuban Missile Crisis? That we will discuss. Now, what is it? What is Cuba? It is an island country. Where is this Cuba situated? It is located 150 kilometers away from the coast of America, that is United States of America. Now, this Cuba was a communist country. Okay, it was a communist country, and so that means it was area of USSR. What is USSR? United Socialist Soviet Republic. Okay, so it was the area of USSR. Now it received, that is, if it is an area, that means it received finance. It received financial and diplomatic aid from Russia. Now, since this was a communist country, in 1961, the leaders of USSR, they were worried that USA might attack Cuba and overthrow Fidel Castro. Who was Fidel Castro? He was the leader of Cuba. Okay, he was the leader of Cuba, and Cuba was a communist country because it was area of USSR, so it was a communist country. Okay, now in 1962, the leaders of USSR, that is, the leader was Nikita Khrushchev. Fidel Castro was the leader of Cuba. Okay, don't misunderstand or don't mistake it for leader of USSR. So 1962, Nikita Khrushchev was the leader of USSR. Now what did they decide? They decided to convert this Cuba into Russian base. Russian military base. Okay, so for this, what did they start doing? They started bringing their missiles and nuclear weapons, and they started installing their missiles and nuclear weapons here in Cuba. Okay, now what happened? After 3 weeks of all these things that were taking place in Cuba, after 3 weeks, USA comes to know about it. USA learns about this, about the Russian action. So now, who is the leader of USA? Who is the president of USA? John F. Kennedy. So John F. Kennedy and his advisor, they do not want to take any action that will lead into a full-fledged war. So they don't want to take any such action. So what did they direct? They direct that their ships, that is the USA ships, will stop the Russian ships. Okay, that are going towards Cuba. They will stop their ships. Okay, they will tell them to go back. Then they also told the leaders, the USSR leaders, to remove their weapons from Cuba. Now, the USSR leader told the USA
students of +1 and +2. I am Rajneesh Gill, your political science teacher. Today we are going to do topic the Cold War era. Students, हमने लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, मगर मैं आपको फिर से दोबारा शुरू से समझाना चाहूँगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। व्हाट इज़ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? क्यूबा क्या है? क्यूबा एक आइलैंड कंट्री है। ये कहाँ पर है? ये 150 किलोमीटर्स यूएसए कोस्ट के दूर है, 150 किलोमीटर्स दूर है यूएसए के कोस्ट से। अब क्यूबा में क्या सिस्टम था? क्यूबा में जो है कम्युनिस्ट सिस्टम था। जब मैंने कहा कम्युनिस्ट सिस्टम, मेरा मतलब है वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो कम्युनिस्ट था। अब मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जो यूएसएसआर था, हम जानते हैं कि यूएसएसआर जो था उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था? कम्युनिज्म। तो यूएसएसआर क्या थी? ये यूएसएसआर की क्यूबा एक एली थी। अब यूएसएसआर क्या है? आपको पता ही होना चाहिए कि यूएसएसआर क्या है? यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो 1961 में क्या होता है कि जो सोवियत यूनियन है उनके लीडर्स को ये लगता है कि यूएसए जो है कहीं क्यूबा के ऊपर हमला ना कर दे। जैसे हम जानते हैं कि क्यूबा क्या थी? वो यूएसएसआर की एली थी। और क्यूबा का जो है लीडर कौन था? उसके लीडर का नाम है फिडेल कास्त्रो। तो फिडेल कास्त्रो जो था वो क्यूबा का लीडर था। अब ये जो है, मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ कि क्यूबा क्या था? क्यूबा जो था एली था, फ्रेंड कंट्री था रशिया का। रशिया जो है एक्चुअली यूएसएसआर की लीडर थी रशिया, ठीक है। तो अब क्योंकि वो एली था इसीलिए उसे क्या मिल रही थी? उसे फाइनेंशियल एड मिल रही थी, पैसा मिल रहा था यूएसएसआर से, और एक डिप्लोमेटिक एड होती है जो, तो डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड मिल रही थी उससे। तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाती है? क्योंकि रशिया को ये लगता है, यूएसएसआर को ये लगता है कि कहीं यूएसए जो है क्यूबा पे हमला ना कर दे, तो 1962 में वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि रशियन बेस बना लिया जाए क्यूबा को, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? यहाँ पे मिसाइल्स, अपनी मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करना शुरू कर दिए। हम किस बात यहाँ की बात कर रहे हैं? हम क्यूबा की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे अपने मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन जो है इंस्टॉल करना शुरू कर दिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रशिया का उस टाइम पे लीडर कौन था? रशिया का लीडर था निकिता क्रुश्चेव। क्योंकि मैं आपको इसीलिए रशिया की नाम इसलिए हम बात लेते हैं क्योंकि रशिया जो है यूएसएसआर का लीडर था। तो निकिता क्रुश्चेव जो है उस टाइम पे उनका जो है लीडर था। तब अब इन्होंने क्या किया कि अपने वेपन्स जो है, न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स जो है वो रशिया क्यूबा में भेजना शुरू कर दिए। अब क्या होता है कि 3 वीक्स के बाद में, आफ्टर 3 वीक्स ये सारी घटना घट रही होती है, उसके आफ्टर 3 वीक्स जो है यूएसए को पता चलता है इसके बारे में। अब यूएसए का जो है लीडर कौन है? यूएसए का लीडर है जॉन एफ कैनेडी। अब जो यूएसए के लीडर्स हैं उन्हें पता तो चल गया, मगर वो ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते। यानी जॉन एफ कैनेडी है और उनके एडवाइज़र्स होते हैं। तो जॉन एफ कैनेडी और उनके एडवाइज़र ने जो है कोई भी ऐसा कदम उठाने से जो है परहेज़ किया जिसकी वजह से एक फुल स्केल वॉर हो सकती है। यानी अगर जो वॉर होगी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। हम सब जानते हैं कि सबके पास न्यूक्लियर वेपन है और वो पहले 2 वॉरों से बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकती है।
तो इसके लिए जो है इन्होंने जो है अपनी शिप्स भेजी ताकि ये रशिया की शिप्स को जो है रोके आगे बढ़ने से, ठीक है। और ये क्या थी, एक तरह से वार्निंग थी, यूएसएसआर को वार्निंग थी कि अपनी शिप्स जो है वो वापस लेके जाओ, ठीक है। तो जो यूएसएसआर था वो मान गया कि वो अपनी जो है शिप्स वापस लेके जाएगा, अपनी मिसाइलें भी वापस लेके जाएगा, मगर वो ये वादा करे, कौन वादा करे, यूएसए वादा करे कि वो क्यूबा पे हमला नहीं करेगा। तो इसी तरह से दोनों लोगों ने कैसे बिहेव किया, दोनों लोगों ने जो है रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया और अवॉइड की वर्ल्ड वॉर 3। तो जिससे क्या हुआ कि जिससे पूरी दुनिया जो है उसे एक शांति मिली मन में, क्योंकि सब डर गए थे कि अगर जो दोनों में युद्ध होता है तो पूरी दुनिया में ये युद्ध छिड़ेगा और जो ये ऐसा युद्ध होगा जिससे जान माल दोनों का ही बहुत नुकसान होगा। अच्छा, अब ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हमने डिस्कस की थी ना, एक्चुअली में ये क्यूबन मिसाइल क्या थी, ये हाई पॉइंट थी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही थी उसकी। अब कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर क्या है, इसे भी फुल उसमें लिख देती हूँ कैपिटल लेटर्स में। तो कोल्ड वॉर एक्चुअली में क्या थी, कोल्ड वॉर जो थी वो क्या थी, एक राइवलरी थी, कॉम्पिटिशंस था, टेंशन्स थी। किन में, दो सुपर पावर में, यूएसए एंड यूएसएसआर। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो उनके एलीज थे ना उनमें भी। इनको सपोर्ट किसकी थी, इनको सपोर्ट थी जिसको हम कह सकते हैं बैक्ड बाय देयर एलीज, ठीक है। अब ये जो कोल्ड वॉर जो थी ना, ये जो कोल्ड वॉर थी ऐसे नहीं था कि ये हमेशा कोल्ड ही रही थी। दूसरे कुछ रीजन्स थे ना जो वर्ल्ड के, उनमें इनकी आपस में जो है वॉर भी हुई है, यानी जो इनकी एलीज थे ना उनमें आपस में जब वॉर हुई है ना तो ये दोनों कंट्री जो है उसमें इन्वॉल्व रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो कोल्ड वॉर क्या थी, हमने देखा है कोल्ड वॉर राइवलरी कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स थे, कॉम्पिटिशन्स थे। सिर्फ यही नहीं था बल्कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी थी दोनों में। आइडियोलॉजिकल वॉर क्या थी, आइडियोलॉजिकल वॉर, ये आइडियोलॉजिकल वॉर क्या थी, दैट एप्रोप्रिएट, कौन सा एप्रोप्रिएट सिस्टम है, किस चीज का सिस्टम, वर्ल्ड की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है। तो अब ये आइडियोलॉजी जो है हम दोनों की एक बार देख लेते हैं कि दोनों जो ब्लॉक्स थे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। यूएसए और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी। यूएसए की आइडियोलॉजी क्या थी, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, और यूएसएसआर क्या थी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो इनका जो है सिर्फ मिलिट्री अलायंस नहीं था, सिर्फ राइवलरी नहीं थी, बल्कि आइडियोलॉजिकल वॉर भी थी कि किसकी आइडियोलॉजी जो है वो बेस्ट है, यानी विच इज़ द अप्रोप्रिएट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इनकी एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कोल्ड वॉर एरा और कोल्ड वॉर क्या था ये आपको समझ आ गया होगा। ओके देन, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। Good morning students of +1 +2. I am Rajneesh Gill, your political science teacher. Today we are going to continue with the chapter The Cold War Era.
इन द लास्ट वीडियो स्टूडेंट आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। कोल्ड वॉर क्या है? कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्रंटेशन, tensions between the two superpowers that is USA and USSR and backed by their allies। तो वो सिर्फ आइडियोलॉजिकल वॉर, वो सिर्फ राइवलरी, मिलिट्री अलायंस या राइवलरी नहीं थी, बल्कि आइडियोलॉजिकल वॉर भी थी, हमने ये पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ए कोल्ड वॉर। स्टूडेंट्स, ये कोल्ड वॉर कब से शुरू हुई थी? ये कोल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद से शुरू हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो एलीज और एक्सिस पावर के बीच में जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में है। तो एलीज कंट्रीज़ कौन सी थी? एलीज जो है वो फ्रेंच कंट्रीज़ थी। उसके कौन से कंट्री जो है एलीज कंट्रीज़ में थी? वो थी ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, ये एलीज में थी। और एक्सिस कंट्रीज़ में कौन थे? एक्सिस कंट्री के जो पार्टनर थे वो थे जर्मनी, जिसको हम कह सकते हैं हिटलर जर्मनी, जापान और इटली। तो इनमें जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है सिर्फ यूरोप में नहीं लड़ा गया था, बल्कि यूरोप के बाहर वाले इलाकों में भी लड़ा गया था, दैट इज़ आउटसाइड यूरोप। कहाँ से कहाँ लड़ा गया था? वो लड़ा गया है म्यांमार में। म्यांमार कौन सी कंट्री है? जिसे पहले हम बर्मा कहते थे। उसके बाद चाइना में, फिर साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं हम, और इंडिया में भी लड़ी गई है ये। इंडिया में कहाँ पे? हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लड़ी गई है। अब ये जो विश्व युद्ध था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 था, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ इसमें बहुत सारे जान और माल का नुकसान हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हुआ ही था, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उससे भी दुगना हुआ। अब बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म होती है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब खत्म होती है जब यूएसए जो है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब डाल देती है। अब बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो उसके सपोर्ट में थे, कुछ कंट्री जो है उसके अगेंस्ट में थी। तो क्रिटिक्स जो है, जिसको हम कहते हैं आलोचक, तो व्हाट डज द क्रिटिक्स हैव टू से? क्रिटिक्स से दैट ड्रॉपिंग ऑफ द बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी वाज अननेसेसरी। क्यों? बिकॉज जापान जो है वो सरेंडर करने वाला था। तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि वो यूएसएसआर को रोकना चाह रहा था। यूएसएसआर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा रहा था एशिया में और दूसरे पार्ट्स में। तो वहाँ पे वो यूएसएसआर को जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के से रोकने के लिए जो है यूएसए ने ये कदम उठाया था, क्योंकि यूएसए जो है वांटेड टू शो दैट हु इज़ द बॉस। मगर यूएसए का ये कहना है कि हमने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब इसलिए डाला ताकि युद्ध जो है ख़त्म हो जाए और एलीज कंट्रीज़ का और यूएसए का जो है और आगे कोई नुकसान नहीं हो, जो भी हुआ होगा। मगर ये जो अनएक्सेप्टेबल था, हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब डालना जो है वो कोई ज़रूरी नहीं था। अब हम बात करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म होता है तो क्या हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से 2 सुपर पावर आए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी तो सिर्फ एक सुपर पावर था, मगर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है तो हमारे सामने 2 सुपर पावर आ जाते हैं, यूएसएसआर और यूएसए। ठीक है, ये 2 सुपर पावर थे। अब ये 2 सुपर पावर जो थे वो अपना इन्फ्लुएंस जो है पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, अब ये जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए क्या करते थे? इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो है सीधी सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन इकट्ठे करते थे। तब वो वेपन इकट्ठे करते थे, इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे को डराने या धमकाने वाला काम था। तो अब ये जितने जितने वेपन्स इकट्ठे कर रहे थे तो इससे एक चीज़ सुनिश्चित हो रही थी कि ये लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बॉम्ब्स हैं। तो अगर जो एक पार्टी जो है दूसरे के ऊपर बॉम्ब डालती है तो दूसरे के पास अभी भी इतना शक्ति बची होगी कि वो उसका दोबारा जवाब दे। ठीक है, तो यूएसए अगर जो यूएसएसआर के पास ऊपर अटैक करता है, यूएसएसआर के पास अभी भी इतनी शक्ति बची होगी कि उसका जवाब दे, यानी इतनी ज़्यादा नुकसान दोनों का होगा, चाहे जितना मर्जी पॉलिटिकल गेन हो। ठीक है, मगर जो है जो उनके समाज के ऊपर जो नुकसान होगा वो दोनों अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, नोबडी विल बी एबल टू अफोर्ड। तो ये दोनों जो है, इसीलिए दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, चाहे कितना मर्जी उकसावा हो, प्रोवोकेशन हम कह सकते हैं, जितना मर्जी उकसावा हो या कितनी मर्जी पॉलिटिकल गेन हो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डिटरेंस। ठीक है, बोथ साइड हैव कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक
एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर, यानी दोनों में से कोई भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर युद्ध की सूरत में इतना ज़्यादा नुकसान होने वाला है कि कोई नहीं बचेगा दोनों साइड में से ये बताने के लिए कि कौन जीता ऐसे युद्ध में। इसीलिए जो है ये जिनकी लॉजिक ऑफ डिटरेंस जो है इस चीज़ को ये ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब मेन मिलिट्री फीचर क्या था? मेन मिलिट्री फीचर क्या था इस मेन मिलिट्री फीचर ये था कि वो दोनों ही पार्टी जो है वो रैशनली एंड रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। ठीक है, यानी ये अवॉइड करें, युद्ध को अवॉइड करें, दोनों ही रिस्पॉन्सिबली और रैशनली बिहेव करेंगे। तो यही मेन मिलिट्री फीचर था इस कोल्ड वॉर का, यानी जितना मर्जी एक दूसरे को उकसाया जाए ये वेपन से हमला नहीं करेंगे। अब देखो बेटा, हम बात करेंगे इमरजेंस ऑफ टू, हम लोग यहाँ पे ये बात करेंगे, डिस्कस करेंगे द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। हम बात करेंगे द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। अब इसमें क्या है, हम जानते हैं कि दोनों कंट्री जो है वो अपने इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जो है वो अपने स्पेयर में लाना चाहते थे, और एक तो उन्हें आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी इससे मिलने वाली थी। इसीलिए तो ये दोनों ही जो थे, चाहे सुपर पावर थे या स्मॉलर कंट्रीज थे, वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए उनकी अपनी अपनी कैलकुलेशंस जो थी उसकी वजह से जो है ये एक दूसरे को के अलायंस थे। अलायंस मतलब एक दूसरे से मित्रता करते थे। तो अब स्मॉलर स्टेट जो थे, छोटियाँ कंट्रियाँ जो हैं, स्मॉलर स्टेट जो हैं वो सुपर पावर के साथ क्या अलायंस करती थी, क्योंकि सुपर पावर तो इतनी बड़ी शक्तिशाली कंट्री है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है इनके साथ में अलायंस करने की, वो उनके बिना भी ठीक है। तो स्मॉलर स्टेट जो थे वो क्यों उनके साथ अलायंस करते थे? क्योंकि उन्हें जो है एक तो फाइनेंशियल एड मिलती थी, यानी उनको पैसा मिलता था, उसके बाद में प्रोटेक्शन मिलती थी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो उन्हें क्या करते थे, वेपन्स भी देते थे, यानी वो उन्हें प्रॉमिस करते थे कि अगर जो आपके ऊपर हमला होता है तो हम आपको बचाएंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो उन्हें क्या मिलती थी? उन्हें मिलती थी प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन मिलती थी और फाइनेंशियल एड मिलती थी। किसके खिलाफ? अपनी नेबरिंग कंट्री के खिलाफ, जो कि ज़्यादातर उनके राइवल्स होते थे, उनके दुश्मनी कंट्रियाँ होती थी, जैसे इंडिया का पाकिस्तान है, लगा लो आप। ठीक है, तो इस तरह से जो स्मॉलर स्टेट थे वो अलायंस का भाग बनते थे, हिस्सा बन जाते थे, बड़ी किसी ना किसी सुपर पावर जो है उसका पार्ट बन जाते थे। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था? इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड जो है दो हिस्सों में बट गया था। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी उसे वेस्टर्न अलायंस कहती थी, वो यूएसए के साथ में था, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो क्योंकि यूएसएसआर का हिस्सा थी इसलिए उसे ईस्टर्न अलायंस कहते थे। अब हम लोग बेटा आगे बात करेंगे अलग अलग अलायंस की बात करेंगे हम लोग। जैसे कि यूएसए ने जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में जो अलायंस किया था उसका नाम है नेटो, उसमें 12 स्टेट्स थे, 12 कंट्रीज थी यूएसए के साथ। तो इनकी डिक्लेरेशन क्या थी? इन्होंने डिक्लेयर किया था, दे डिक्लेयर दैट अटैक ऑन एनी ऑफ दीज नेटो मेंबर कंट्रीज, यानी नेटो कंट्रीज में किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो वो किस पे अटैक होगा? ये पूरे नेटो पे अटैक माना जाएगा और ये लोग जो है मिलके उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए उसके जवाब में रशिया ने वार्सो पैक्ट साइन किया। अब वार्सो पैक्ट के कौन मेंबर थे? 7 सैटेलाइट स्टेट्स थे। 7 सैटेलाइट स्टेट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट स्टेट जो है इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती थी, इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती थी, मगर वो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो है किसी और कंट्री के इन्फ्लुएंस में आ गई थी। जैसे आप समझ लो कि कॉलोनी बन गई थी वो। तो उसमें 7 सैटेलाइट स्टेट सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, अल्बेनिया, बुल्गारिया, ज़ेकोस्लोवाकिया, ईस्टर्न जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया थी। Okay students, that is all for now.
we will continue with the same topic in the next video. Till then, bye, have a nice day, take care. Hello students of plus 1 plus 2, I am Rajneesh Gill, your pole science teacher. Today we are going to continue with the chapter the Cold War era, and we will begin with arenas of Cold War where we left in the other video. So arenas of the Cold War क्या है? It is the area where the crisis or the war occurred or threatened to occur between the two superpowers and their alliances, but did not cross a certain limit. तो ये हमने किया है. फिर हमने ये भी किया है कि जो कंट्रीज़ आउटसाइड द पावर ब्लॉक्स है उन्होंने मीडिएट करके इन दोनों कंट्रीज़ में यानी सुपर पावर्स में जो है पीस एंड स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की थी. तो इन दोनों सुपर पावर है यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों को क्या करना है? इन लोगों को अपने आप को रोकना है, किसी भी कीमत पे युद्ध ना हो. ठीक है, इसलिए इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए. ये दोनों समझते भी हैं इस बात को. अब इसके बावजूद वो भी जो है कोल्ड वॉर के टाइम पे दोनों में राइवलरी जो है बिल्कुल कम नहीं हुई. तो राइवलरी तो चलती रही. तो इन्होंने क्या किया? मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये लोग हथियार जमा करते हैं. हथियार क्यों जमा करते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर जो हमारे पास हथियार होंगे तो दूसरी कंट्री जो है वो हम पे हमला नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हम पे हमला किया तो हम जवाब देंगे उस हमले का. अब ये दोनों कंट्री ये भी समझती थी कि दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन है. दे बोथ पोसेस न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल्स. व्हाट इफ, क्या होगा ऐसे हालात में? अब दोनों ही कंट्री जो है दे मिसअंडरस्टैंड ईच अदर, यानी दोनों ही कंट्री जो है हो सकता है मिस कैलकुलेट कर लें कि उनके पास कितने वेपन्स हैं. दोनों को ये नहीं पता है, दोनों कंट्री नहीं जानती हैं एक दूसरे के इंटेंशंस क्या हैं. ठीक है, क्या होगा ऐसे हालात में जब न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है, या कई बार गलती से न्यूक्लियर वेपन जो है छूट जाता है, या कोई सोल्जर जो है वॉर छेड़ने की वजह के लिए यानी वो युद्ध शुरू करने के लिए कोई सोल्जर जो है मस्ती मजाक में ये लगा लो शरारत करता है और वेपन जो है न्यूक्लियर वेपन का बटन दबा देता है. तो अब दूसरी कंट्री को तो पता नहीं है कि कोई एनिमी ने या उसके लीडर को तो ये पता नहीं है कि जानबूझ के छेड़ा गया है, किसी और कंट्री ने जो है हम पे हमला नहीं किया है. तो ये जानते हैं, ये दूसरी कंट्री भी जानते हैं. तो हम बात करेंगे आर्म्स कंट्रोल की. तो इसीलिए दोनों कंट्रीज जो है उन्होंने आर्म्स कंट्रोल के बारे में सोचा. आर्म कंट्रोल का मतलब दोनों ने डिसाइड किया कि हम जो है कुछ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन जो है उसको कम करने के लिए जो है कुछ कदम उठाएंगे. इसके लिए उन्होंने कई बातचीत की है, कई एग्रीमेंट की है और कई जो है आर्म्स कंट्रोल जो है उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, जिसमें न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आती है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, CTBT है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT. तो ऐसी कई और भी आगे उन्होंने जो है एग्रीमेंट साइन किए हैं जिसके तहत जो है वो हथियारों को जो है कम करने की कोशिश कर रहे हैं या आगे और हथियार जो है वो तैयार ना करें. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है चैलेंज टू बाइपोलैरिटी. ठीक है, इसका क्या मतलब है? बाइपोलैरिटी क्या होती है? बाइपोलैरिटी का मतलब है जब दो सुपर पावर हों. व्हेन देयर आर टू सुपर पावर. इस यहाँ पे जो है हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें हमारे पास दो सुपर पावर हैं, एक यूएसए है और एक यूएसएसआर है. ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं चैलेंज टू बाइपोलैरिटी. अब इनको चैलेंज कौन दे रहा है? देखो, हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको नैम के बारे में बताया था कि न्यू कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट जब होके आ रही है तो मैंने उसके बारे में बताया था. तो नैम क्या है एक्चुअली में? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट.
ठीक है, ये कौन सी कंट्रीज़ हैं? ये वो कंट्रीज़ हैं जो किसी ना किसी जो है यानी ये तो मैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अलग बात कर रही हूँ मैं, ये तो मैं ये कह रही हूँ कि जो पहले कंट्रीज जो थी या तो फ्रांस की जो है कॉलोनीज होती थी या ब्रिटिश की कॉलोनीज होती थी, तो जब वो इंडिपेंडेंट हो गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नेम का हिस्सा बनना पसंद किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जो हम सुपर पावर में से यानी जो सुपर ब्लॉक्स हैं जो यूएसए ब्लॉक या यूएसएसआर ब्लॉक, अगर जो हम दोनों का हिस्सा बन जाते हैं तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमारी जो एक तरह से इंडिपेंडेंस वापस चली जाएगी। यानी आज हम आज़ाद हैं, अगर जो हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करते तो फिर हम उसके इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा बने। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा मतलब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 5 कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे उनकी फ्रेंडशिप की वजह से हुई थी। तो जैसे कि हमारे जो है जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हम कह सकते हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उसके अलावा जो है दूसरे लीडर्स थे जो हमारे यूगोस्लोवाकिया के थे, जो जोसेफ ब्रोज टीटो। उसके अलावा इजिप्ट के लीडर थे गमाल अब्दुल नासर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मीटिंग की, ये लीडर एक्चुअली फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो उन्होंने मीटिंग की थी 1956 में। उसके अलावा इंडोनेशिया के सुकरानो और घाना के जो है क्वामे नुक्राम जो है उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था। तो इन लीडर्स, ये जो 5 जैसे मैंने आपको बाकी के बताया था, आपको घाना के और जो मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया के जो लीडर्स थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया था। तो इन्होंने जो है नेम की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले जो है इनका समिट कब हुआ था, 1961 में समिट हुआ था बेलग्रेड में। बेलग्रेड में इनका 1961 में जो है समिट हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने जो है कुछ 3 फैक्टर्स थे, यानी इनकी जो मीटिंग हुई थी उन्होंने 3 चीज़ों पे जो है सहमति की थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे जो है कोल्ड वॉर चल रही थी, और कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था, हम कह सकते हैं कि ये आउटकम, इसका क्या आउटकम था, 3 फैक्टर्स थे। पहले तो कोल्ड वॉर चल रही थी जो, और कोल्ड वॉर में जो है टेंशन्स जो है वो बढ़ती जा रही थी। उसके अलावा जो उसका एरिया जो था, उसका जो इन्फ्लुएंस था, वो दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा था। उसके अलावा इन्होंने 5 कंट्रीज़ ने अब एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन की, यानी उन्होंने बात की कि चाहे जो मर्जी होए हम आपस में कोऑपरेशन रखेंगे। तीसरी चीज़ क्या हुई थी, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि उस वक्त बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो आज़ाद होकर आ रही थी, जो पहले कॉलोनीज़ थी। तो बहुत सारी कंट्री जो है जिसमें हम कह सकते हैं कि अफ्रीकन कंट्री जो थी, जो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बनी थी, ठीक है। तो 16 ऐसी कंट्री थी, अफ्रीकन कंट्री जो थी यूनाइटेड नेशन का जो है हिस्सा बनी थी। तो ये जो चीज़ें थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये आउटकम ऑफ 3 फैक्टर्स थे। अभी हम लोग इसमें बात करेंगे कि ये सबसे पहले इसकी समिट कब हुई थी, 1961 में हुई थी बेलग्रेड में, 25 मेंबर कंट्रीज थी। उसके बाद में लास्ट समिट इसकी कब हुई है, 2017, मतलब 17 समिट हुई है, सॉरी नॉट 2017 की बात, 17 समिट हुई है इनकी, और वो हुई है 2016 में हुई है। और इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ थे, इसमें 120 मेंबर कंट्रीज़ थे और 17 ऑब्जर्वर्स थे। तो इस तरह से जो है ये नेम जो है आज भी जो है चल रही है, और इसका आज भी देखा जाए तो इसका आज भी बहुत इम्पोर्टेंस है। कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया है, इसका मतलब इसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया है ऐसा नहीं है, आज भी ये एक रेलेवेंट है। ओके, तो अब देखो चैलेंज टू बाइपोलैरिटी में हम लोग आगे क्या करेंगे। अब ये जो नॉन अलाइन कंट्री जो थी, ये एक पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया। तो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम और इंटरेस्ट जो थी कंट्रीज ही थी, देखो सारी कंट्री जो है उनका पॉलिटिकल सिस्टम अलग होता है,
ठीक है, और इनका हर एक कंट्री का अपना इंटरेस्ट होता है, जैसे लोग जो है उनमें फ़र्क होता है उसी तरह से कंट्रीज़ में भी फ़र्क होता है। तो यहाँ पे ये जो है होमोजीनियस नहीं थी, यानी ये कह सकते हैं कि सब एक ही तरह के पॉलिटिकल सिस्टम वाले नहीं थे या सबका ही इंटरेस्ट सेम नहीं था। देखो कहाँ हमारी कंट्री है इंडिया, कहाँ अफ्रीकन कंट्री है, तो कितना फ़र्क है हम लोगों में। तो ये होमोजीनियस नहीं थी, तो इसलिए ये बताना मुश्किल था कि एक्चुअली में नॉन अलाइनमेंट क्या थी, मगर ये बताना बहुत आसान था कि वो क्या नहीं थी, ये बताना आसान था। यानी ये हम नहीं कह सकते हैं कि व्हाट इट रियली स्टैंड फॉर, ठीक है, मगर ये बता सकते थे कि व्हाट इट वाज नॉट, ठीक है। तो अब देखो हम बात करेंगे कि ये जो नॉन अलाइनमेंट है उसे क्या कहते थे। नॉन अलाइन को कहते थे कि पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन है या न्यूट्रलिटी है, ठीक है। तो नेम ना ही आइसोलेशन है ना ही न्यूट्रलिटी है, ठीक है। आइसोलेशन का मतलब क्या है, अपने आप को वर्ल्ड अफेयर से अलग कर लेना, आइसोलेट हो जाना, सबसे अलग थलग हो जाना, जो कि अमेरिका ने किया था, यूएसए ने किया था आफ्टर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1787 में हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो है 1787 के से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो है अमेरिका पूरी तरह से आइसोलेट हो गई थी। तो ये आइसोलेशन नहीं है, क्योंकि देखो हमने जो इंडिया है हमने क्या किया था कि दोनों राइवल ग्रुप थे ना, दो अलाइंसेस, हमने उसमें मीडिएट किया था और पीस और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की थी। और हमारी स्ट्रेंथ जो है नॉन अलाइन कंट्री की स्ट्रेंथ जो है किस पे बेस्ड है, यूनिटी पे बेस्ड है। और ये हमने पक्का निश्चय किया है नॉन अलाइन कंट्रीज़ में चाहे जो मर्जी हो जाए हम किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, न्यूट्रलिटी का मतलब है वॉर में पड़ना नहीं, ठीक है। यानी चुपचाप जब वॉर हो तो उसे ख़त्म करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेना, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं है कि स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। जो कंट्री न्यूट्रलिटी जो है यानी जिसकी न्यूट्रल प्रैक्टिस होती है, जो कंट्री न्यूट्रलिटी प्रैक्टिस करती है तो वो क्या करती है, वॉर एंड करने के लिए कुछ नहीं करती है। मगर यहाँ पे हमने ऐसे नहीं किया था, हमने ऐसी सिचुएशन में भी मीडिएट किया है और वॉर को एंड करने की कोशिश की है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Hello students of plus 1 plus 2, I am Rajneesh Gill, your pole science teacher. Today we are going to continue with the chapter the Cold War era. We are going to start where we left in the last video, we were doing the chapter, beg your pardon, we were doing the topic the emergence of the two power blocks. तो हम उसमें डिस्कशन कर रहे थे, हमने डिस्कस किया कि पूरे वर्ल्ड को दो कैंपों में उन्होंने बांट दिया था। एक वेस्टर्न अलायंस थी जो यूएसए के साथ में थी, एक ईस्टर्न अलायंस थी जो कि यूएसएसआर के साथ में थी, ठीक है। अब हम लोग हमने उस दिन ये भी डिस्कस किया था कि उन्होंने फिर अलग अलग जो है नेगोशिएशन किए थे, ट्रीटी साइन की थी, जैसे कि नाटो है, वॉर्सो है, हमने ये भी डिस्कस किया था। उसी के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अलायंस किए थे, नाटो भी, सीटो थी, सेंटो थी और वॉर्सो पैक्ट जो यूएसएसआर ने किया था। अब बहुत सारी जगहों पे उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री भी खड़ी की थी ताकि वो कंट्री को अपने इन्फ्लुएंस में लाया जा सके। मैं आपको फिर से बताती हूँ, देखो ये अलायंस किसके अंदर होती थी, सुपर पावर्स और छोटी कंट्रीज़ के बीच में, स्मॉलर कंट्रीज़ के बीच में। अब उनकी अपनी उसमें इंटरेस्ट होते थे, अपने उनके कैलकुलेशंस होते थे, अपने कुछ फ़ायदे होते थे उनके। अब हमेशा ट्रीटी ही साइन नहीं होती थी, कई बार वो मिलिट्री भी इस्तेमाल करते थे। यानी कंट्रीज़ को अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए जो सुपर पावर थी वो अपनी मिलिट्री जो है किसी कंट्री में जो है खड़ी करती थी ताकि वो कंट्री उनके अंडर रहे, उनके हाथ में रहे, जैसे उसने ईस्टर्न यूरोप में किया था यूएसएसआर ने, ठीक है। अब देखो यूएसए ने क्या किया था, यूएसए ने सीटो साइन की थी और फिर सेंटो भी साइन की। सीटो में कौन सी कंट्रीज़ थी यूएसए के साथ में, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, द फिलीपींस, थाईलैंड एंड पाकिस्तान। सेंटो में कौन सी कंट्रीज थी, इराक, ईरान, पाकिस्तान, टर्की और यूनाइटेड किंगडम। मैं यही पूछ रही हूँ कि ये कंट्रीज़ के साथ में ऐसे अलायंस क्यों कर रहे थे। वो कंट्रीज़ के साथ में अलायंस कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ कंट्रियाँ जो है वो बच जाएँ, जो तो यूएसएसआर के उसमें इन्फ्लुएंस में चली गई हैं,
मगर वो चाहते थे कि और कंट्रियाँ जो है यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस पे जाने से रुक जाए, बच जाए, इसीलिए वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ में अलायंस कर लेते थे। कौन करते थे? यूएसए। ठीक है, अब इस सीटो और सेंटो का जवाब यूएसएसआर ने कैसे दिया? यूएसएसआर और कम्युनिस्ट चाइना, कम्युनिस्ट चाइना जो है उसको सबसे पहले इंडिया ने रेगनाइज किया था। तो कम्युनिस्ट चाइना जो है उन्होंने क्या किया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम एंड इराक, तो इन कंट्रीज़ के साथ में अलायंस कर लिया। अब क्या रीज़न क्या था? देखो, जब दो कंट्री जो है अलायंस कर रही हैं, एक पावर ब्लॉक एक के साथ और दूसरा पावर ब्लॉक दूसरे के साथ, सीधी सी बात है इन कंट्रीज़ की जो है यूएसए के साथ नहीं बनती है, इसीलिए उस यूएसए को जवाब देने के लिए इन्होंने जो है इन कंट्रीज़ के साथ में जो है अपना अलायंस साइन कर लिया। अब ये सब अलायंसेस तो चल रहे थे जब तक हमने देखा है कि किस तरह से एक पावर ब्लॉक दूसरा पावर ब्लॉक जो है उसको काउंटर करने के लिए किस तरह से जो है अलायंस साइन कर लेता है, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है। तो अब देखो, सुपर पावर तो बहुत ही शक्तिशाली कंट्रीज़ थी, उनको तो अलायंस ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनके पास तो इतनी न्यूक्लियर वेपन्स थे और इतनी सारी मिसाइलें थी, ठीक है, इतना पावर था उनका, तो उन्हें कोई ज़रूरत भी नहीं थी, मगर उनके अपने मतलब थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, मैं बताऊँगी मैं कैसे। अब देखो, जब ये सब चल रहा था ना, तो उस वक्त जो है बहुत सारी कंट्रीज जो है वो कॉलोनी जो थी, पहले जो है कॉलोनीज थी, वो जो है आज़ाद होके आ रही थी कंट्रीज़, यानी या तो वो फ्रांस की कॉलोनी थी या ब्रिटेन की कॉलोनीज़ थी, तो वो कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हो रही थी और वो क्या बन रही थी, नैम का हिस्सा बन रही थी, क्योंकि वो दोनों पावर ब्लॉक में से किसी भी ब्लॉक में नहीं जाना चाहते थे। वो हम लोग अलग से उसके बारे में पढ़ेंगे एक टॉपिक में। तो अब ये जब हो रहा था कि नैम जो है वो कंट्री जो थी वो अपना इंडिपेंडेंस जो है वो देना नहीं चाहती थी, खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रही थी। तो अब देखो, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो अलायंसेस थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये अलायंस हमेशा साथ में ही रहते थे। आपने किसी कंट्री के साथ अलायंस कर लिया तो वो कंट्री आपके साथ ही रहेगी, नहीं। कई बार इस अलायंस में भी जो है आपस में विवाद होता था, वो उसमें भी स्प्लिट होती थी, जैसे चाइना और यूएसएसआर के बीच में हुआ। अब उनमें दोनों में जो है टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, दोनों का जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट हुआ था आपस में लेके, तो उसमें भी आप देखते हो कि दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे। और उसके अलावा आप देखोगे कि रशिया जो है उसने क्या किया था, रशिया ने जो है उसने कुछ कंट्री के ऊपर हमला भी किया था, उसके बारे में भी हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सुपर पावर्स थे उनको क्या ज़रूरत थी छोटी कंट्रीज़ के साथ में अलायंस करने की, क्योंकि यूएसए जो थी वो इतनी पावरफुल कंट्री थी कि अगर जो एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ छोटी छोटी साथ में आ जाएं और उसके साथ में यूरोप भी आ जाएं तो भी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो क्या ज़रूरत थी, एक तो थी अपने साथ उसे रखने का मतलब है अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपने साथ में लॉयल रखने का मतलब है कि वो ये दिखाना चाहता था कि मेरी आइडियोलॉजी जो है सबसे बेस्ट है। यानी यूएसए की आइडियोलॉजी क्या थी, यूएसए की आइडियोलॉजी जो थी क्या थी, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म थी। यूएसएसआर की क्या थी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो यही थी कि किसकी आइडियोलॉजी बेस्ट है, तो इसीलिए वो एक दूसरे को ये भी शो करना चाहते थे। तो अब देखो, सुपर पावर्स को क्या ज़रूरत थी, सुपर पावर जो थे वो छोटी कंट्री के साथ में क्यों अलायंस करते थे, उनको क्या ज़रूरत थी अलायंस करने की। सबसे पहला रीज़न है वाइटल रिसोर्सेज। जो छोटे कंट्रीज़ होते थे उनके पास ऑयल होता था, दूसरे नेचुरल गैस होते थे या मिनरल्स होते थे, एक तो वो उन्हें मिल सकते थे, दूसरी बात है उन्हें टेरिटरी मिलती थी जिससे वो अपना बेस बना सकते हैं। बेस बनाना मतलब जैसे हमने क्यूबा में नहीं देखा था, रशिया ने उसे अपना मिलिट्री बेस बना लिया था जहाँ से वो हमला कर सकती थी यूएसए के ऊपर, ठीक है। तीसरा है वो स्पाइंग, यानी उन्हें जगह मिलती थी जहाँ से ये एक दूसरे के ऊपर जासूसी कर सकें, ठीक है। चौथा बात क्या था, मिलिट्री एक्सपेंसेस। ये जो छोटियाँ कंट्री थी ना, वो उसकी जितना खर्चा हुआ है ना, मिलिट्री एक्सपेंसेस जो है वो मिलके भरती थी उनका, तो ये सारे उनके फ़ायदे थे। इसीलिए जो है बड़ी कंट्री जो है वो छोटी कंट्रीज़ के साथ में अलायंस करती थी, ठीक है। तो ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा इमरजेंस ऑफ द टू सुपर पावर्स में, इमरजेंस ऑफ टू सुपर पावर में टू पावर ब्लॉक्स। तो आपको पता होगा कि नाटो, सीटो, सेंटो, वॉर्सो पैक्ट क्या था,
वो क्यों साइन किए गए थे, किस कंट्रीज़ के बीच में साइन किए थे, ये हमने ये डिस्कस कर लिया है। तो एक दूसरे के ऊपर वो आइडियोलॉजिकल जीत भी प्राप्त करना चाहती थी और अपना इन्फ्लुएंस भी जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए जो है वो अलायंस करते थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर। तो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर। वी हैव डन वन एग्जाम्पल, दैट इज़ द क्यूबा। क्यूबा क्या थी, एक जगह बन गई थी जहाँ पे दोनों कंट्री में जो है दोनों अलायंसेस में क्या हुई थी, एक तरह से जो है कॉन्फ्रंट्रेशन हुई थी, क्राइसिस हुई थी, ठीक है। तो अभी देखो अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर क्या है, एरियाज वेयर क्राइसिस और वॉर अकर्ड और थ्रेटन टू अकर बिटवीन द अलायंस सिस्टम बट डिड नॉट क्रॉस सर्टन लिमिट। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि कोरिया में हुआ था, वियतनाम में और अफगानिस्तान में, इन दोनों में जो है ये हुई थी। तो अब क्या होता है कि ऐसी जगहों में बहुत इन मैनी केसेस क्या होते हैं, ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप्स होते हैं, यानी जो है वो अपने हथियार वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं। एंड इन मैनी केसेस क्या होता है, इनमें डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जो होता है वो नहीं होता और दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। दोनों सुपर पावर में क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे पे शक करना, और उसी से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है कई बारी जो है बहुत बुरी स्थितियाँ बन जाती हैं, ठीक है। तो मगर क्या हुआ कि ये जो अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर था, तो जहाँ पे इन दोनों में क्राइसिस हुई थी या वॉर होती थी या थ्रेटन टू अकर होती थी, तो वो उस जगह तक ही लिमिट होती थी, यानी एक फुल स्केल वॉर नहीं होती थी, जैसे हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर नहीं होती थी, यानी एक सर्टन लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं होती थी। तो इससे जो है दुनिया बची रहती थी। हाँ, ये ज़रूर होता था कि वो एक एरिया से दूसरी एरिया जो है शिफ्ट हो रही थी, ठीक है। तो ये जो कोल्ड वॉर थी ना, एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट होती रहती थी, मगर वो कभी भी इतनी ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं हुई है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है कि एक पूरी वर्ल्ड वॉर बन जाए, ठीक है। इतनी क्लियर है आप लोगों को बात, शायद अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर शायद आपको समझ आ गई क्या थी, ठीक है। अब हम लोग आगे वाला इसमें आगे जो है टॉपिक करेंगे। तो हमने आगे टॉपिक क्या करना है कि कई बार जो है दो कंट्रीज, जो कुछ कंट्रीज होती दोनों ब्लॉक का हिस्सा नहीं थी, आउटसाइड द टू ब्लॉक्स, कई बार क्या करती थी, मीडिएट करती थी, यानी बीच में पड़ जाती थी और इन दोनों कंट्री में सुलह करवाने की कोशिश करती थी, या दोनों सुपर पावर में जो है सुलह कराने की कोशिश करती थी। तो उसमें से एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्होंने जब कोरियन वॉर थी उस टाइम पे जो है उन्होंने बीच बचाव किया और उसको जो है वहाँ पे जो है पीस एंड स्टेबिलिटी कायम करने की कोशिश की। और एक बार जो है कॉन्गो क्राइसिस जो थे, हम कॉन्गो क्राइसिस की बात करते हैं, वो अराउंड 1961 हुआ है। तो उस टाइम पे जो है यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी थे, उनका नाम है डैग हैमरसॉल्ट। तो ये जो थे यूनाइटेड नेशन के जो है जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने बीच बचाव किया था और उसको एंड करने में जो है मदद की थी। तो कई बार जो कुछ कंट्रीज़ होती हैं आउटसाइड द टू पावर ब्लॉक है, जो वो बीच में पड़ जाती हैं, बीच में पड़ के जो है इनमें जो है सुलह सफाई करवा देती हैं। तो अब देखो यहाँ है सुपर पावर जो है, उन्हें भी पता है कि जो है उन्हें भी अपने आप को रोकना चाहिए और बिहेव करना चाहिए, किस तरह से रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए और युद्ध को जो है हर कीमत पे रोकना चाहिए, ये खुद भी समझती हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमने पढ़ा है कि दोनों में हमेशा जो है क्या होता था, दोनों जो है एक दूसरे पे शक करते थे, इसलिए हथियार जो है वो इकट्ठा करते रहते थे। और मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि अपने आप को जो है इतना लैस कर लेते। क्यों लैस करते थे? क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर जो आपके पास हथियार होंगे तो दूसरा कंट्री आप पे अटैक नहीं करेगा, वो आपसे डरेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ही एंड करूँगी इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।